Hello friends, myself Sunil Bansal. Today we will be discussing performance characteristics of DC series motor. So one by one we will be discussing for all the motors, but today we will be discussing for DC series motor. So before actually proceeding with the characteristics, two equations must be known to us. First is your torque equation and second is your speed equation that we have already discussed in our previous videos. So what is torque equation? Torque equation is this: torque is directly proportional to phi Ia, where phi is your flux and Ia is your armature current. So this you must remember, that torque is directly proportional to phi Ia. Okay, and second is the speed equation. So speed equation, in speed equation we must know n is directly proportional to V minus Ia Ra over phi. So this speed equation we generally derive with the EMF equation, and this EMF equation is given by E equals to Z phi Np upon 60A. So this is the motor equation, means this equation, from this equation we replace the value of Eb in the above equation. This V equals to Eb plus Ia Ra. So generally this equation is known as motor equation. So this is the general equation of DC shunt motor. Okay, so if we talk about DC series motor, so this equation will be V equals to Eb plus Ia Ra plus Ia RSE. ओके, इसमें एक और टर्म ऐड हो जाएगा अगर जो हम सीरीज मोटर की वोल्टेज इक्वेशन की बात करें, IaRSE। तो जो हमारा वो IaRSC है उसको हम ISC और RSC भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं IaRSC, बिकॉज वी ऑल नो दैट इन केस ऑफ DC सीरीज मोटर I equals to Ia equals to ISE. Okay, that we have already discussed in the types of DC motors and generators. Okay, तो इससे इस स्पीड इक्वेशन में क्या डिफरेंस आया? सपोज करो लेट अस से कि ये जो इक्वेशन है स्पीड इक्वेशन, ये है डीसी शंट मोटर के लिए, तो सीरीज मोटर के लिए बच्चे क्या चेंज हो जाएगा? इसमें सीरीज मोटर के लिए चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका V माइनस Ia Ra प्लस IaRSE। एक और टर्म यहाँ पे ऐड हो जाएगा इसमें, IaRSC। ओके, सो ये हमें जब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर, वहाँ पे हेल्प करेगा, तो उस समय मैं आपको डायरेक्टली ये बताऊंगा। ओके, सो लेट अस मूव द कैरेक्टरिस्टिक्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल। द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी series motor, actually these are the three characteristics which goes for DC series, DC shunt as well as cumulative type DC motors। ये तीनों के लिए है। इस टॉर्क वर्सेस स्पीड, सॉरी, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, टॉर्क वर्सेस Ia। ओके, सेकेंड इज योर स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, स्पीड वर्सेस Ia। तो जो टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट है उसमें हमें टॉर्क इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जो स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट है उसमें हमें स्पीड इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, और जो टॉर्क वर्सेस स्पीड है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स टॉर्क वर्सेस स्पीड, इसमें जो ऊपर की दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारे पास में तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हुई, फर्स्ट इज टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, सेकंड इज स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, एंड थर्ड इज टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। ओके, so let us start with the characteristics. Let us for DC series motor, let us discuss the first characteristics, that is your torque versus armature current. Okay, so this is torque versus armature current characteristics. So we all know the torque equation is given by T is directly proportional to phi Ia. Okay, so before saturation, we all know before saturation this phi is directly proportional to Ia. ओके, मीन्स जब तक हमारी मोटर सैचुरेट नहीं हो जाएगी उसमें जो फील्ड फ्लक्स डेवलप होगा, क्योंकि फील्ड फ्लक्स किससे डेवलप होता है? फील्ड करंट से। सीरीज मोटर के केस में जो हमारा फील्ड करंट है
ISC वो इक्वल है IA के, तो चाहे हम ISC बोलें या IA बोलें एक ही बात है, तो हम उसको यहाँ पे IA की टर्म्स में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो फील्ड करंट है, इसकी वजह से फील्ड फ्लक्स डेवलप होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं टॉर्क इक्वेशन में, अबव इक्वेशन में, कि बिफोर सैचुरेशन दिस फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA। ओके, सो यहाँ पे फाई को हम रिप्लेस कर दें IA से, तो हमारा इक्वेशन बन गई फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर। ओके, आफ्टर मैग्नेटिक सैचुरेशन ऑफ कोर फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ IA। भाई हमारा फ्लक्स डेवलप हो गया, तो अब तो उसे और फर्दर करंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा करंट IA से, या हम बोले सीरीज करंट से, ISC से। तो ISC और IA सेम चीज़ है अगर जो हम सीरीज मोटर की बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैग्नेटिक सैचुरेशन हो जाता है तो फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ IA। अब उसे फर्दर IA की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फ्लक्स डज नॉट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन आर्मेचर करंट, देयरफॉर आफ्टर सैचुरेशन torque is directly proportional to IA. Okay, so therefore on light loads the torque produced by the series motor is proportional to the square of the armature current. यहाँ पे लाइट लोड्स में हमने देखा कि बिफोर सैचुरेशन इज टर्म्ड एज द लाइट लोड। बिफोर सैचुरेशन हमने देखा टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर। ओके, तो इस टाइम पे जो बिफोर सैचुरेशन के टाइम पे जो कर्व होगा वो आपका कैसा कर्व होगा? पैराबोलिक टाइप होगा। ओके, ये आपका पैराबोलिक टाइप होगा। कब? बिफोर सैचुरेशन, जब आपका टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर होगा। बट आफ्टर मैग्नेटिक सैचुरेशन जो फ्लक्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्साइटेशन करंट, सो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर IA स्क्वायर, हेंस कैरेक्टरिस्टिक्स बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे टॉर्क इंक्रीज होगी आर्मेचर करंट इंक्रीज होगा, है ना। यहाँ से आप देख पाएंगे इस इक्वेशन से। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और यहाँ पे एक पैराबोलिक मिलेगा। तो स्टार्टिंग में एक पैराबोलिक मिलेगा, फिर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो लेट अस सी इन द डायग्राम। तो ये जो टॉर्क आर्मेचर करंट है ये पैराबोलिक मिल रहा, फिर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा। ओके, ये पैराबोलिक, फिर आपको एक स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बस थोड़ा डायग्राम में अलग अलग चेंजेस है। ये एक सोर्स से उठाया मैंने और ये दूसरे सोर्स से पिकअप किया। ओके, नेक्स्ट इज योर सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज योर स्पीड armature current characteristics. Speed armature current characteristics. Okay, so we all know the speed equation of motor is given by N is directly proportional to V minus IA RA over phi. Okay, so in this for DC series motor this IA RA यहाँ पे एक और एडिशनल ऐड हो जाता है IA RSE, मैंने अभी आपको बताया था एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। ओके, सो एट लोअर वैल्यूज ऑफ IA, जब इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, लोअर वैल्यूज ऑफ IA, द वोल्टेज ड्रॉप इज नेग्लिजिबली स्मॉल इन कंपैरिजन टू V। जब IA की वैल्यू स्मॉल होगी, आर्मेचर करंट की वैल्यू स्मॉल होगी, तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये बहुत कम होगी इन कंपैरिजन टू V, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं N इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V अपॉन फाई। ओके, सिंस V इज़ कांस्टेंट, तो ये हमारा जो इनपुट है वो हमारा कांस्टेंट है, फिक्स्ड इनपुट हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं मोटर को, तो N इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 over 5। ओके, सो बट इन DC सीरीज मोटर द स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट फ्लोइंग इन द फील्ड वाइंडिंग। जो स्पीड है DC सीरीज मोटर में, जो स्पीड है DC सीरीज मोटर की, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। ओके, तो सो यहाँ से हम कह सकते हैं जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर्मेचर करंट के। क्यों? जो आर्मेचर करंट है बच्चे, ये इक्वेशन है आपकी, N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/5। ओके, तो बट हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में इक्वेशन चाहिए। तो ये जो फाई है ये है हमारा फील्ड फ्लक्स। ये किसकी वजह से डेवलप हुआ सीरीज मोटर में? ये डेवलप हुआ सीरीज करंट की वजह से। जो हमारी फील्ड वाइंडिंग में जो हमारा फील्ड वाइंडिंग में करंट है ISC, और जो ISC है सीरीज मोटर में उसकी वैल्यू होती है इक्वल्स टू IA।
तो फाइनली ये करंट किसकी वजह से डेवलप हुआ, आई ए की वजह से डेवलप हुआ, या हम कहें फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए. ओके, सो हेंस द सीरीज मोटर इज अ वेरिएबल फ्लक्स मशीन. तो यहाँ से इस इक्वेशन को हम रिप्लेस कर सकते हैं, इस फाई को हम रिप्लेस कर सकते हैं आई ए से, क्योंकि ये फ्लक्स जो है ये डेवलप होता है हमारा फील्ड करंट की वजह से, और फील्ड करंट आई एस सी जो है सीरीज मोटर में इक्वल टू होता है आई ए के. तो हम इसको हमने रिप्लेस कर दिया आई ए से. अब ये हमारी इक्वेशन हो गई. तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, स्पीड और आई ए के बीच में रिलेशन क्या, इन्वर्स. दस फॉर सीरीज मोटर द स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट. दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है. स्पीड को हम इंक्रीज करेंगे तो करंट हमारा डिक्रीज हो जाएगा. तो द स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, लोड करंट जो है, द स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ओके, सो ये इस तरह से आएगा. स्पीड ज़्यादा है, करंट आपका कम होगा. ओके, स्पीड कम है, करंट आपका ज़्यादा होगा. तो इमेजिन, स्पीड कम है, करंट ज़्यादा है, और स्पीड ज़्यादा है, करंट कम है. ओके, द अबव इक्वेशन shows that when the load current is small the speed will be very large. भाई लोड करंट स्मॉल होने का मतलब क्या है, लोड कम है. लोड कम है उस समय पे स्पीड बहुत ज़्यादा होगी. ठीक है, जब लोड कम होगा स्पीड बहुत ज़्यादा होगी. ओके, क्यों, लोड करंट कम है होने पे स्पीड ज़्यादा होती है. तो लोड करंट जो है वो कब होता है, जब लोड कम होता है. जैसे जैसे हम लोड को बढ़ाएंगे लोड करंट भी बढ़ेगा, वो उतना ही करंट ड्रॉ करेगा सप्लाई से. तो हमने लोड कम है हमारा तो स्पीड हमारी ज़्यादा है. लोड ज़्यादा होगा तो लोड करंट ज़्यादा होगा, स्पीड हमारी कम होगी. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारी डीसी सीरीज मोटर है वो कभी भी बिना लोड के रन नहीं करनी चाहिए. Hence we can say that DC series motor should not run on no load. Okay, they should always be connected to loads by gears so that minimum load is always maintained to keep the speed within safe limits. Okay, ये स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स से हम देख भी सकते हैं. आर्मेचर करंट कम है, स्पीड बहुत ज़्यादा. आर्मेचर करंट कब होता है, जब हमारा लोड कम होता है. लोड कम है तो आर्मेचर करंट कम है, आर्मेचर करंट कम है, स्पीड ज़्यादा है. तो लोड बिल्कुल भी नहीं होगा, आर्मेचर करंट बिल्कुल भी नहीं होगा, और स्पीड बहुत ज़्यादा होगी. तो इसलिए हम बोलते हैं कि डीसी सीरीज़ मोटर शुड नेवर रन ऑन नो लोड. तो हमेशा कुछ ना कुछ लोड हमारा अटैच होना चाहिए डीसी सीरीज़ मोटर के में, उनको स्टार्ट करने से पहले. और वो जो लोड है दैट शुड बी कनेक्टेड विथ गियर सिस्टम, कि जिससे कि हम उसकी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर पाए. ओके, थर्ड है आपकी स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स. तो हमने स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, इस टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी. तो हम जो आर्मेचर करंट है उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, सपोज़ करो ये आर्मेचर करंट की हमने एक वैल्यू ली, वन हमने वैल्यू ली. इसके लिए स्पीड क्या है, वन वैल्यू पे टॉर्क की वैल्यू क्या है, तो दोनों को हम मिला के और प्लॉट कर देंगे थर्ड के लिए. ओके, तो इसी तरह से फिर नेक्स्ट आई ए की वैल्यू लेंगे, दूसरी आई ए की वैल्यू लेंगे, उसके लिए हम स्पीड और टॉर्क देखेंगे, फिर हम प्लॉट कर देंगे. तो विद द हेल्प ऑफ अबाउ टू कैरेक्टरिस्टिक्स वी जनरेट द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट्स स्पीड आर्मेचर करंट एंड टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ आई ए फाइंड टॉर्क फ्रॉम टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पीड फ्रॉम स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर आई ए की वैल्यू के लिए टॉर्क भी और स्पीड भी दोनों चीज़ को देखिएगा और उसको प्लॉट कर दीजिएगा थर्ड वन पे. ओके, सो रिपीट दिस प्रोसेस फॉर अ नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ आई ए. इसी तरह से अलग अलग वैल्यूज़ ऑफ आई ए के लिए रिपीट करिएगा एंड यू विल फाइंड द करस्पॉन्डेंस कर्व फॉर स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो दीज पॉइंट्स आर प्लॉटेड टू गेट द स्पीड torque characteristics of a DC series motor. This characteristic shows that the DC series motor has high torque, that the DC series motor has a high starting torque at low speed and a low torque at high speed. देखिएगा बच्चे, लो टॉर्क पे हाई स्पीड है और हाई स्पीड पे लो टॉर्क है. ओके, तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग हमें हाई टॉर्क मिलता है.
ओके, हाई स्पीड, सॉरी, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग हमें हाई स्पीड मिलता है। जब स्पीड हमारी कम है तो टॉर्क हमारी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो स्पीड कम कब होगी? स्टार्टिंग में ही। जैसे ही हम मोटर को स्टार्ट करेंगे तो हमारी स्पीड कम होगी, उस समय हाई टॉर्क होगी। तो ये हमें हाई टॉर्क जहाँ हमें रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स शोज दैट द डीसी सीरीज मोटर है हाई टॉर्क, that the DC series motor has a high starting torque at low speed and low starting torque at high speed. Hence the speed of DC series motor changes considerably with increasing load, है ना। So application क्या हुई इसकी? Application हुई these are used where high starting torque is required. ओके, स्टार्टिंग में स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी, टॉर्क बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको हम बोलते हैं हाई स्टार्टिंग टॉर्क मोटर्स भी बोलते हैं। तो ये हमें जैसे क्रेन्स में, लिफ्ट्स में, है ना, एलिवेटर्स में, उसमें ये रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर characteristics of DC series motor. In the next video we will catch you with the other topic. Thank you.